السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان کھیل اور کھلاڑی کا تازہ شمارہ لے کے اپنی ٹیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، ہماری ٹیم کی یہی کوشش رہتی ہے کہ پوری دنیا میں کھیلوں کی کیا رہی پیش رفت اور خاص طور پر جموں کشمیر میں کھیلوں کا کیا رہا رجوع، اس حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ہر وادی کشمیر میں یا پورے دنیا کے کھیل و احوال کی باتیں۔ تو ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک مہمان ہوتے ہیں جن سے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ تو کون ہے آج کے مہمان؟ اس کے لیے آپ کیجئے تھوڑا سا انتظار۔ تو آئیے ناظرین، اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں لوکل، نیشنل اور انٹرنیشنل سپورٹس راؤنڈ اپ کے ساتھ۔ اس کے لیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں میرے ساتھی فاروق بٹ کے پاس۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا دوست آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، یہاں پر آپ کے لیے پیش ہوگا مقامی، قومی اور بین الاقوامی کھیل خبروں کا احوال، سپورٹس نیوز راؤنڈ اپ۔ سب سے پہلے آغاز مقامی کھیل خبروں کا، آئیے دیکھتے ہیں آج کا ہمارا سپورٹس نیوز راؤنڈ اپ۔ لداخ میں جاری کھیلو انڈیا ونٹر گیمز 2026 کا پہلا مرحلہ خوش اسلوبی کے ساتھ ہوا مکمل، جس میں ہریانہ نے پہلا، لداخ نے دوسرا، مہاراشٹر نے تیسرا اور تلنگانہ نے چوتھا مقام کیا حاصل۔ ان گیمز میں ملک بھر سے وابستہ 700 سے زائد ایتھلیٹس نے کی تھی شمولیت۔ گلمرگ میں جاری 12ویں ونٹر نیشنل آئس اسٹاک سپورٹس چیمپئن شپ 2026 کا پہلا ایڈیشن ہوا اختتام پذیر۔ چیمپئن شپ میں جموں کشمیر سمیت ملک کے مختلف شہروں سے وابستہ 200 سے زائد کھلاڑیوں نے بڑھ چڑھ کر کی شرکت۔ یہ ایونٹ 24 سے لے کر 27 جنوری کے درمیان ہوا منعقد۔ امپھال منی پور میں جاری نیشنل اسکول گیمز 2025-26 کے دوران کھیلو انڈیا جوڈو سینٹر گاندربل سے وابستہ بازیہ طارق نے کوچ راحل شفیع کی قیادت میں ایک برونز کا میڈل کیا حاصل۔ بازیہ نے اس سے قبل بھی ملکی اور قومی سطح کے ایونٹس میں 14 سے زائد تمغے جیت لیے۔ جے کے اسپورٹس کونسل کے زیر اہتمام جموں میں ہوا سیکٹری اسپورٹس کونسل کے ہاتھوں اوپن چیس چیمپئن شپ 2026 کا رنگا رنگ تقریب کے ساتھ شاندار آغاز۔ چیمپئن شپ میں صوبہ جموں کے مختلف علاقوں سے وابستہ ڈیفرنٹ ایج گروپس کے 100 سے زائد کھلاڑیوں نے کی شمولیت۔ جے کے اسپورٹس کونسل کے زیر اہتمام پہلگام میں 6 فروری سے 10ویں نیشنل سنو شو رننگ چیمپئن شپ 2026 کا ہو رہا ہے آغاز۔ چیمپئن شپ میں جموں کشمیر، لداخ اور ملک کے دیگر حصوں سے وابستہ 200 سے زائد مختلف عمر کے ایتھلیٹس ہوئے تھے شامل۔ جے پور راجستھان میں منعقدہ فیڈریشن کپ 2026 کے دوران جموں کشمیر کے جوڈو کھیل سے وابستہ کھلاڑیوں نے الگ الگ زمروں کے تحت کل ملا کر 24 میڈل جیت لیے۔ اس طرح جموں کشمیر کے کھلاڑیوں نے فیڈریشن کپ میں ملک بھر میں تیسرا مقام کیا حاصل۔ جموں کشمیر سرکار نے سال 2025 میں کھیلوں میں بہتر مقام حاصل کرنے پر مختلف کھیلوں سے وابستہ کھلاڑیوں اور کوچز کو اعزاز سے نوازا گیا، جس میں کرکٹ میں عاقب نبی، برجیش شرما، ڈیف جوڈو میں راکیش سنگھ، ووشو میں سلیم کمار، پینچک سلاد کے لیے رئیس احمد، آئزہ ناز چپ کو سکیٹنگ کے لیے، جبکہ کوچ محمد اقبال سمیت کل ملا کر 9 کھلاڑیوں کو اعزاز سے نوازا گیا۔ رانجی ٹرافی 2025-26 کے گزشتہ مقابلے میں جموں کشمیر اور پونڈچیری کے درمیان مقابلہ ہوا ڈرا، جبکہ گزشتہ کل سے جموں کشمیر اور ہماچل پردیش کے درمیان اس وقت مقابلہ ہے جاری۔ ہماچل پردیش نے پہلے کھیلتے ہوئے پہلی اننگ میں 168 رنز بنائے۔ کھیلوں میں 2026 کے پدم ایوارڈز کا کیا گیا اعلان۔ بھارت کے ورلڈ کپ وننگ کیپٹن روہت شرما کو ملا پدم شری، خواتین کرکٹر ہرمن پریت کور کو بھی دیا گیا پدم شری، بھارتی ٹینس کے سابق سٹار وجے امرت راج کو دیا گیا پدم بھوشن۔ ہاکی انڈیا لیگ 2025-26 ہوئی اختتام پذیر۔ ودنتا کلنگا لینسرز کی ٹیم نے کی فائنل میں شاندار فتح حاصل۔ لینسرز نے ٹائٹل میچ میں ہرایا رانچی رائلرز کو 2 کے مقابلے 3 گول سے۔ ہینڈرکس نے داغے 2 گولز وننگ کے لیے۔ پنجاب نے نیشنل جوڈو چیمپئن شپ 2025-26 میں کیا کمال، حاصل کیے 4 گولڈ میڈلز اور کیا ٹیم ٹائٹل پر قبضہ۔ چندی گڑھ رہا 3 گولڈ کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ لڑکیوں کے ساتھ ساتھ لڑکوں نے بھی دکھائے جوڈو کے داؤ۔ وومنز لیگ 2025-26 ہے عمدہ طریقے سے جاری۔ رائل چیلنجرز بنگلورو کی ٹیم نے پوائنٹ ٹیبل میں کیا اول مقام حاصل۔ آر سی بی اور یو پی وارئرز کے درمیان کھیلے گئے میچ میں کی آر سی بی نے فتح حاصل۔ آج وومنز پریمیئر لیگ میں ہوگا ممبئی انڈینز اور گجرات جینٹس کے ساتھ مقابلہ۔ بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 T20 کی سیریز کا آخری میچ کھیلا جائے گا کل۔ بھارت ہے سیریز میں 3-1 سے آگے۔ چوتھے مقابلے میں کیوی ٹیم نے ٹیم انڈیا کو 50 رن سے ہرایا۔ سی فورڈ نے 62 رنز بنائے اور بنے پلیئر آف دا میچ۔
इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज 2-1 से जीत ली। तीसरी और आखिरी मैच में इंग्लैंड के ब्रोक ने 136 रन नॉट आउट की इनिंग खेली और बने प्लेयर ऑफ द मैच। जो रूट रहे प्लेयर ऑफ द सीरीज। साल के पहले ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज है मर्दों के सिंगल सेमीफाइनल्स का दिन। कल खेले गए खवातीन के सिंगल सेमीफाइनल्स में रबीकिना और सबालेंका ने की कामयाबी हासिल और साथ ही फाइनल के लिए किया क्वालिफाई। खवातीन का फाइनल खेला जाएगा कल। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान दूसरे T20 इंटरनेशनल खेला जाएगा कल। जुमेरात को खेले गए सीरीज के पहले T20 मैच में मेजबान पाकिस्तान ने साइम अयूब की ऑलराउंड परफॉर्मेंस की बदौलत जीत की दर्ज। शुक्रिया फारूक। तो नाजरीन, ये था हमारा स्पोर्ट्स राउंड अप। नाजरीन, ये प्रोग्राम आप अभी लाइव देख रहे हैं DD कशर से, और इस प्रोग्राम का आप रिपीट टेलीकास्ट शनिचर को यानी 31 जनवरी सुबह 9:10 पे आप देख सकते हैं फिर से। तो नाज़रीन, इसी के साथ साथ YouTube पर भी हमारे प्रोग्राम को आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। उसके लिए आप DD कशर पे जाके खेल और खिलाड़ी का प्ले लिस्ट क्लिक करके वहां पर आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं और ये प्रोग्राम भी आप इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो नाज़रीन, अब अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं कि जैसा कि मैंने कहा कि हमारे इस प्रोग्राम में मेहमान होते हैं, और आज भी हमारे साथ हमारे खास मेहमान तशरीफ़ फरमा है। और अगर हम देखें, वादी कश्मीर को बहुत टाइम से इंतज़ार था इस चले कलान में बर्फ़ का, और शुक्र अल्लाह का कि बर्फ़ गिरी, लोग इससे लुत्फ़अंदोज़ हुए। तो नाज़रीन, क्या ये बर्फ़ खाली हम लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं इससे कि कुछ और भी खेल खेला जा सकता है? जैसा कि हमारे वादी कश्मीर में बहुत ही खास है, जैसे गुलमर्ग में हम आइस स्केटिंग करते हैं। क्या आइस स्केटिंग के बगैर भी कोई ऐसी गेम्स है, कोई ऐसा स्पोर्ट है जो हम इस विंटर्स में खेल सकते हैं? बिल्कुल हाँ नाजरीन, बिल्कुल है। तो इसी सिलसिले में हम चलते हैं मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाजरीन, फारूक अहमद ने जब स्पोर्ट्स राउंड अप आपकी खिदमत में पेश किया, आपने देखा वहाँ पर लद्दाख की खेलो इंडिया जो आइस हॉकी और आइस स्केटिंग की खबर थी। उसके बाद गुलमर्ग में भी आइस स्टॉक की खबर आई, वो इवेंट वहाँ पर मुनक्किद हुआ है। और आगे जो है और इवेंट्स होने वाले हैं जो विंटर के साथ, विंटर स्पोर्ट्स के साथ जिनका ताल्लुक है। आज के मेहमान का जहाँ तक सवाल है, उनको हमने मदऊ किया है आज के शो में इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल मौजूद वक्त है उस स्पोर्ट को डिस्कस करने के लिए जो स्पोर्ट हमारे मेहमान का ख़ास स्पोर्ट है। हालांकि इनका ओवरऑल ताल्लुक जो है वो एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ है। हमारे मेहमान हैं आज मुज़क्किर हमीद ख़ान। मुज़क्किर, वेलकम टू खेल और खिलाड़ी। थैंक यू सर। मुज़क्किर, हमारे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में ओवरऑल क्रिकेट मशहूर है, फुटबॉल खेली जाती है, या स्कूल में बैडमिंटन होता है, TT भी खेली जाती है, या चेस खेलते हैं या कैरम खेलते हैं इंडोर गेम्स में। ये जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है और ख़ासकर जो आइस क्लाइंबिंग आपने की है, जिसकी आज हम ज़्यादा बात करेंगे, ये आम स्पोर्ट्स को छोड़ के ये एडवेंचरस और ख़तरे से भरा, लेकिन एडवेंचर से भरा ये एरिया आपने कैसे चुना? एक्चुअली बात 2017 से होती है, जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी। पहले मैं ट्रैकिंग किया करता था। 2017 में मेरा एक दोस्त जाता था, तो उसने बोला आज मैं तुझे नई जगह दिखाता हूँ, तो मैं उसके साथ चला गया। तो मेरी पहली लेक थी तुलियन लेक, जो पहलगाम में। तो फिर उससे पहले कभी भी आपने ट्रैकिंग नहीं की थी, कोई हाइकिंग नहीं की थी? नहीं की थी। पहली बार 2017 में आपका पढ़ाई का सफर क्या था? क्या आप स्कूल में थे या आप कहाँ थे? आपने BBA किया है? BBA तो मैं 12th स्टैंडर्ड 12th में आप पढ़ते थे 2017 में। तो मैंने वहीं से स्टार्ट की। ये पहला ट्रैक था? पहला ट्रैक था मेरा। कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसी के बाद मैंने कंटिन्यू किया, तो अभी यहाँ तक पहुँचा, उसी के मोटिवेट हुआ मैं, तो फिर मैं यहाँ तक पहुँचा। ये ट्रैकिंग जब आपने शुरू की, उसके बाद ये सफ़र आगे कैसे बढ़ा? चूँकि आपने फिर आइस क्लाइंबिंग तक आप पहुँच गए जो अल्टीमेट है। जी जी बिल्कुल। तो बीच में कौन से इवेंट्स आए, बीच में कौन से पड़ाव आए इस सफ़र में? जब मैंने ट्रैकिंग में कदम रखा तो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस होने लगा मुझे। तो मैंने अपना एक क्लब ज्वाइन किया, जो कश्मीर का अच्छा खासा क्लब है, ऑल जम्मू एंड कश्मीर माउंटेनियर। श्रीनगर में है ये? श्रीनगर में जी। तो मैंने वो ज्वाइन किया। वहाँ बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड जो ट्रैकिंग करते थे, माउंटेनियरिंग करते थे, उनके साथ मेरा उठना बैठना हुआ जी। तो फिर मैंने 2023 में माउंटेनियरिंग में कदम लिया।
2023 سے 23 माउंटेनियरिंग आपने हाँ। शुरू कर दी, पहले जी, ट्रैकिंग होती पहले थी। ट्रैकिंग हुआ जी, करती थी, उसमें मैं ट्रैकिंग किन किन एरियाज की होती थी? ट्रैकिंग में मैं ज़्यादातर एल्पाइन लेक्स देखता था। ऑलमोस्ट मैंने अभी 97 एल्पाइन लेक्स देखी है ऑल ओवर कश्मीर में, जो चाहे 97? वो 97 चाहे वो कुछ लेक्स के आप हमें नाम बोल सकते हैं जहाँ जहाँ आप हाँ गए? बिल्कुल। जैसे कौसर नाग है, गंगबल लेक है, हर भगवान है, और है दोदसर है, दुरनार, दुरनार 1 2, बर्फसर, और भी बहुत सारे बहुत लेक्स सारी हैं, लेक्स बहुत हैं। सारे लेक्स हैं। तो उसके बाद आप माउंटेनियरिंग की तरफ गए। माउंटेनियरिंग की तरफ गए, 2017 से 2023 के बाद, 23 के बाद आपने आप माउंटेनियरिंग माउंटेनियरिंग शुरू में कर कदम दी। लिया। जी, तो फिर मैंने पहली पीक की जो टटाकुटी पीक है, टाटाकुटी, जी, ये किस साइड में आती है? वो पीर पंजाल रेंज में आती है। दौद पत्थर से उसका ट्रैक स्टार्ट होता है, जी, उसमें भी ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन लगते हैं। अच्छा, उसका बेस कैंप दुमेल में होता है, जो दौद पत्थर के आगे अश्तार से उसका रास्ता जाता है। जी, बड़ी ब्यूटीफुल जगह है। तो वहीं से उसके मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे, पहली बार मैं सक्सेसफुल नहीं हो अच्छा। पाया, फिर मैं दूसरे ईयर फिर गया उसके, अच्छा, फिर मैंने उस टाइम उसको सर कर दिया, समिट किया टाटाकुटी जी पीक सर। को। हाँ। उसके बाद और कौन सी पीक्स आपने समिट उसके की? बाद मैंने सेकंड पीक जो कश्मीर की सबसे हाईएस्ट पीक है, कोल्हाई, वाह, कोल्हाई पीक, वो तो हाईएस्ट अल्टीमेट है कश्मीर का। अल्टीमेट 5431 5431 मीटर। 5431 कितने दिन लगे आपको ये कोल्हाई समिट उसमें करने में? हमने 5 दिन लगाए। जी, वो हमारी कोलैबोरेशन ट्रैक थी विद जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, पहलगाम, हाँ, जवाहर जो- इंस्टीट्यूट पहलगाम, उनके हमरा आपने ये जी किया। जी जी बिल्कुल, उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन जी, आपके क्लब की। एक्सपेडिशन थी। जी, तो 5 दिन हमें वहाँ तक लगे। अच्छा। तो उनके साथ प्रोफेशनल्स थे, जैसे हेमचंद्र, कर्नल हेमचंद्र सिंह कर्नल हेमचंद्र जी। जी, अच्छा, और उनके इकबाल सर थे, अच्छा, अजय सर थे, इकबाल शौकत साहब सर थे। शायद वही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को जी भी जी समिट जी किया बिल्कुल है, बिल्कुल, वो इस स्टूडियोज में आए हैं। हाँ जी, वो अच्छा, अच्छा, उन्हीं के साथ वही हमारी लीड तो कर रहे, आपका वो ये सफर चलता रहा, चलता रहा। तो बिल्कुल, कोल्हाई इसका अल्टीमेट था। कोल्हाई सबसे ये अल्टीमेट था। आइस क्लाइंबिंग में कहाँ से आपने शिफ्ट किया? अगर आपने ट्रैकिंग की, अगर आपने माउंटेनियरिंग की, ये बर्फ को मुश्किल आइस फॉर्मेशंस को चढ़ना और रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ना और एंजॉय करना, ये कैसे इसमें हुआ? जब आहिस्ता आहिस्ता माउंटेनियरिंग में जाते हैं, ट्रैकिंग, जैसे मैं ट्रैकिंग से शिफ्ट हुआ माउंटेनियरिंग, जी, वैसे जी। ही आगे आगे माउंटेनियरिंग से आइस क्लाइंबिंग, फिर आगे आगे पता चलता और कौन कौन से एडवेंचर है इसमें। एडवेंचर ये स्पोर्ट्स कनेक्टेड है आपस जैसे में। रॉक क्लाइंबिंग है, जी। वो हम मोस्टली समर्स में समर्स में हाँ। करते हैं। तो ऐसे विंटर्स में हम करते हैं आइस क्लाइंबिंग। जी, तो ये हम मोस्टली पहलगाम में करते हैं। जी। और ये नाज़रीन भी देख रहे हैं, ये कुछ शॉट्स हैं आपके ये कोल्हाई ग्लेशियर का है, ऑन द टॉप ऑफ कोल्हाई के टॉप पे, 5000 कश्मीर की सबसे ऊंची पीक है। 5431 मीटर्स अबव सी लेवल है। जी, ये सनसेट पीक है जो भी पीर पंजाल में है, 4600, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ पीर पंजाल रेंज है ये। तो ये वाली पीक है, ये कैफिन कार्नेट है जो थजवास रेंज सोनमर्ग में आती है। ये हम 2025 में चढ़े इस साल, जी, नहीं पिछले साल में चढ़े हम इसमें काफ़ी। और ये थजवास पीक है, अगर आप सोनमर्ग जाएंगे वहाँ से आपको ये सीधा आपके बाकी दिखेगी। पार्टनर हाँ, साथी भी ये होते हैं साथी भी, इसमें। हाँ। ये 4800 है जी, ये टटाकुटी पीक है। टाटाकुटी पीक हाँ, जो आपने जी, अभी बिल्कुल। बोला। हाँ हाँ, ये मैंने 2023 में की सबमिट। अच्छा, बिल्कुल सर। तो इसमें और ये हमारा आइस क्लाइंबिंग इवेंट था 1 साल पहले। जी। ये हमारा क्लब है ऑल जम्मू एंड कश्मीर माउंटेनियर्स। तो ये त्राम कंजन वाटरफॉल है। और ये माउंट अम्ब्रेला है, ये भी थजवास रेंज में आती है पीक। अच्छा, ये समर्स में आप करते हैं, ऑटम में करते हैं। हाँ। ये माउंट हरमुख जो जाना माना हरमुख, माउंट हरमुख जो जाना माना पीक है यहाँ कश्मीर में। जी, इसमें भी हम गए थे, ये वेस्टर्न समिट है उसकी। ये आइस क्लाइंबिंग है आपकी? हाँ, ये आइस क्लाइंबिंग है मेरी। ये भी पहलगाम त्राम कंजन वाटरफॉल है। अच्छा। जो कश्मीर का सबसे ऊंचा त्राम कंजन त्राम वाटरफॉल। कंजन वाटरफॉल। जी, ये माउंट डिकियार है, ये राजौरी और शुपियान के बॉर्डर में आता है ये पीक। जी, इसमें हम पिछले साल चढ़े थे। अच्छा, ये भी त्राम कंजन वाटरफॉल की फोटो है। अच्छा, तो ये आपके हमारे बाकी साथी होते हैं, ये दानिश साहब हैं। जी, ये हमारे लीडर जिनसे मैं मुतासिर हुआ, मेंटर है हमारे। जी, जी, इनकी वजह से मैं इतना आगे गया। दानिशदार जीशान आए थे, उनको हमने दूरदर्शन बुलाया था, वो भी आपके साथ होते हैं।
हाँ, वो दूसरे क्लब के मेंबर है, तो वो मेरे साथ नहीं होते। ये हमारे दानिश सर है, जो हमारे लीडर है, हमारे क्लब के लीडर है, जिसकी वजह से मैं आगे आगे चला हूँ। ये सोनमर्ग का वाटरफॉल है, सोनमर्ग वाटरफॉल, इस पे भी हम आइस क्लाइंबिंग करते हैं। ये भी त्राम कंचन वाटरफॉल है जो पहलगाम चंदनवाड़ी के नज़दीक है। बिल्कुल, ये मैं इस पे चढ़ रहा हूँ अभी। ये हमारे दानिशदार है, हमारे टीम लीडर, हमारे क्लब चलिए के अच्छी टीम बात है। बाकी साथी जो आपके होते हैं वो आपके साथ इन मुख्तलिफ एडवेंचरस जर्नीज़ पर साथ होते हैं, और नाज़रीन भी देख रहे हैं इसमें पहलगाम के, सोनमर्ग के और बाकी एरियाज़ के जो हैं। अभी आपका वीडियो भी एक आएगा, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपके साथ ये कुछ सामान हैं, आप हमारे नाज़रीन के लिए बताइए। ये जो आइस क्लाइंबिंग है, तो सबसे अहम जो इक्विपमेंट होता है ये आपका, ये कुछ और भी है, ये आप बता दीजिए। इसको बोलते हैं हम आइस एक्स। आइस एक्स जी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिससे हम ऊपर चढ़ पाते हैं जी। ये इसके भी बहुत किस्म होते हैं। एक होती है वॉकिंग आइस स्टिक आइस एक्स, दूसरी होती है क्लाइंबिंग जी। इसमें भी अलग अलग ये होते हैं। अच्छा। और आप दूसरा देख सकते हैं, ये शू पर आप, शू पर हम, हाँ, ये शू पर हम सबसे लगाते अहम हैं। चीज़ जो है इसमें ये स्पाइक्स होते हैं, इसके ज़रिए हम आइस क्लाइंबिंग करते हैं। जी। ये आगे जो नोक देखते हैं आप, जो ये आइस में जो बंद आइस में होती बंद है। होते हैं, ये हम इनमें लगाते हैं। जी। तो इसमें आपको दिखाता हूँ, ऐसे ऐसे फिट होता है इन पे, तो इसके ज़रिए हम तो ये climbing जो करते हैं। आगे से इसकी नोक है, ये हाँ। आइस में बंद होती है। ये एक आम शूज़ पे नहीं होता है नहीं। कनेक्ट, इस पे अलग अलग शूज़ होते हैं, इससे कनेक्ट होते हैं ये लगते अच्छा, हैं। ये आप दीजिए बूट मुझे। ये कुछ और चीज़ें भी आपके साथ, और ये भी ज़रूरी है, हार्नेस है जो हमारे वेस्ट पे ये लगता है। नाज़रीन देखना चाहेंगे ये जी। इसमें। हार्नेस का क्या रोल होता है इस क्लाइंबिंग में? हार्नेस का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल रहता है, जो इसी आपको पे, लटकाए रखती है और हाँ। आइस जो फॉर्मेशन है या हाँ, आइस जी, वॉल है जी, उसके जी। साथ चढ़ने में जी हेल्प जी, करती इस है। पे ही सारा लोड वोड होता है। ये कमर में बंद होती हाँ, है। ये कमर में बंद होती जी। है, बिल्कुल। ये किसके साथ कनेक्ट होती है? इसमें कैराबाइनर्स लगते हैं, अच्छा। ये होते हैं कैराबाइनर्स। मुज़क्किर, ये तो अच्छा खासा सामान है, महंगा लगता है, हाई क्वालिटी जी, होना बिल्कुल, चाहिए। महंगा काफ़ी तो है। मेहनत आपने की है। हाँ। ये सामान आपको किसने ला के दिया है? और भी सामान है आपके लेफ्ट साइड में हाँ, मेरा भी सामान है। और कुछ? अरे वाह, आप तो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। ये रोप, ये रोप आप देख सकते हैं, ये कोई ऑर्डिनरी रोप नहीं होती है जी ये काफ़ी खास रोप होती है। इसमें भी किस्म होते हैं, स्टैटिक रोप, डायनेमिक रोप। जी। इसमें इस रोप में अगर हम गिरते हैं तो कमर में नहीं लगती है, इसमें इलास्टिक जैसी होती है, अच्छा। तो वो हमारा हार्नेस शॉक रोप के एब्जॉर्ब, साथ बंद रहती बिल्कुल है। बिल्कुल रोप बिल्कुल। ऊपर तक होती है। हाँ हाँ हाँ, और बीच बीच बिल्कुल। में कनेक्ट होती हाँ है। हाँ, बीच बीच में ये हम और कनेक्ट, बाकी चीजें क्या है आपके हाथ में? इसको बोलते हैं क्विक ड्रा। क्विक ड्रॉ। क्विक ड्रा, अच्छा। ये हमारी लगती है आइस स्क्रूज में। अच्छा। ये जो आइस स्क्रू है जो इसमें लगती है, वो जी। बर्फ़ में लगती है, बंद होती है, तो फिर इसके ज़रिए इसमें बंद रखती है। ये अच्छा। कोई मामूली चीज़ नहीं होती है, ये 25 kN वज़न उठाती है। अच्छा। 25 kN हो गया 2500 किलो, वो बहुत हो 2500 100 किलोज, इतना स्ट्रेंथ इस इतना मटेरियल एक में में। होता है। ये सारा इंपोर्टेड सामान है? ये सारा इंपोर्टेड, सारा imported, brand imported, material होना ये चाहिए। सारा, ये टेस्टेड सामान होता है सारा। जी। इसी पे हमारे ये सारा जी गेम जी जी, आप 50 मीटर ऊपर चढ़े हैं, अगर गिर गए बिल्कुल, तो बिल्कुल। खुदा ना खास्ता बहुत ये प्रॉब्लम सारी हो सकती गेम है अपने इक्विपमेंट पे ट्रस्ट करना। है। अच्छा। बिल्कुल। ये जो सामान आपके पास आया 2023 से आपने ये स्पोर्ट शुरू सर। किया, ये सामान कैसे आया? इसमें आपको किसने सपोर्ट किया? जाहिर है जो आपके बाकी साथी हैं उन सब के पास ये सामान होगा। हाँ हाँ, अपना बिल्कुल अपना बिल्कुल अपना जूता, बिल्कुल बिल्कुल अपनी हेलमेट, बाकी बिल्कुल। प्रोटेक्शन गियर, एक अच्छी ड्रेस, मोटी ड्रेस जो उतने माइनस पे आपको सर्दी का एहसास कवर नहीं देगी, करती है। तब आप उस आइस फॉर्मेशन पे चढ़ते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल। सामान आपको किसने ला के दिया है? हमारा जो क्लब है, हम एक दूसरे को मतलब सपोर्ट करते हाँ हैं। सपोर्ट करते हैं, पैसे जमा करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके अच्छा। सामान लाया इन सालों में। एक साथ जमा नहीं होता ये सामान, अच्छा। क्योंकि बड़ा महंगा होता है ये, जाहिर है, देख रहे हैं ज़ाहिर हम। बड़ा महंगा होता है और यहाँ खास कर मिलता नहीं, जी। और ऑनलाइन ही गवर्नमेंट ऑर्डर का किया कोई था। सपोर्ट, कोई और बॉडी, कोई कॉरपोरेट हाउस, कोई बिजनेसमैन जो कभी फुटबॉल को सपोर्ट करते हैं, क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, आपको कोई सपोर्ट करता है घर वालों के बगैर? नहीं सर, हम थोड़ा बहुत सपोर्ट, यहाँ एक ही डिपार्टमेंट है, वो है टूरिज्म टूरिज्म डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट। उनका थोड़ा बहुत सपोर्ट होता है, ज़्यादा सपोर्ट ज़्यादा भी नहीं। ये जो भी करते हैं हम अपने पैसे से करते हैं, सारा अपने शौक से करते हैं, खुद ही करते हैं सब। जी।
अच्छा नाज़रीन, पीछे बैकड्रॉप में भी देख रहे हैं, ये जो वीडियो आपका चल रहा है, ये आपने आइस क्लाइंबिंग की है सोनमर्ग में। आप हाईएस्ट मुज़क्किर कितना चढ़े हैं किसी आइस फॉर्मेशन पे? जो हाईएस्ट वाटरफॉल है यहाँ वो त्रामकंजन वाटरफॉल, रामकंजन वाटरफॉल, उसका मैं हाफ चढ़ा हूँ। वो तो कितना उससे है? वो उसकी ऊंचाई कितनी है? ऑलमोस्ट 50 मीटर्स, 50 मीटर पहलगाम में। ऑलमोस्ट 50। तो आप 25 मीटर तक चढ़ते हैं। हाँ हाँ हाँ। एक बात बताइए, चलिए नीचे से ऊपर जाना, ये सामान जो नाज़रीन ने भी देखा, कुछ और वीडियो का पोर्शन है, ये ज़रूरी है, ये हम इस पर बात करते हैं। ये आइस एक्स है और ये बाकी चीज़ें हैं। आप मुझे एक बात बताइए, सबसे ऊपर जब आप चढ़ते हैं तो वो ऊपर जाके कौन वहाँ पर रस्सी को वहाँ बंद करता है? ये नीचे का एक स्टेप है। बड़ा अच्छा सवाल है ये, कैसे हम ऊपर। थोड़ा सा इसमें बता एक दीजिए। लीड क्लाइंबर होता है, लीड जो क्लाइंबर ऊपर रस्सी लगाता है। वो पहले रस्सी लेता यहाँ है। क्या वो- हो रहा है? ये आइस स्क्रू लगा रहा है, इसके जरिए ही ऊपर रस्सी ऊपर बंद चढ़ते होती हैं। है। हाँ, ये वहाँ वी थ्रेड बना रहा है, इसके जरिए हम नीचे उतरते हैं। लास्ट में 2 होल्स बनाए करते हैं। अच्छा ये भी हम लीड क्लाइंब करते हैं वहाँ, अच्छा। ऊपर ऊपर चढ़ते हैं। इसमें वो थोड़ी थोड़ी रोप लगाता है, आगे आगे आगे। लीड फिर क्लाइंबर last में चढ़ता है लीड पहले। क्लाइंबर चढ़ता है। उसके ये बड़ा साथ- एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ, ये हमारे ये दानिश साहब हैं। दानिश साहब ये है, आपके क्लब के जो- खास मेंबर हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसड है, इनके जो हमें सिखाते मुख्तलिफ दिखाते हैं। एरियाज में, सोनमर्ग में और पहलगाम में आपने ये किया है। किया है, बिल्कुल। भारत में भी, उत्तराखंड में, हिमाचल में, लाहौल स्पीति में, दार्जिलिंग में और अरुणाचल प्रदेश में और बाकी एरियाज में ये आइस क्लाइंबिंग होती है। और भारत बाज़ाबिता इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग एंड क्लाइंबिंग जो फेडरेशन है UIEE, उसका बाज़ाबिता एक मेंबर है, जो वर्ल्ड बॉडी है आइस क्लाइंबिंग की। IMF। जी जी जी। और इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन है IMF, जी बाज़ाबिता उसके साथ वो एफिलिएटेड है। तो आप बता दीजिए, वो जो लीड क्लाइंबर है वो रस्सी को पहले ऊपर बंद करता ऊपर है, बंद ये करता है। आपका वो वीडियो है, ये आप जी बता सर, दीजिए। ये सोनमर्ग में, इसमें मैं चढ़ रहा हूँ रोप लगाने ऊपर। इसमें आहिस्ता आहिस्ता हम आइस स्क्रू जो मैंने आपको अभी दिखाए वो लगाते हैं। तो उसके ज़रिए फिर क्विक ड्रा लगाते हैं, उसमें रोप करते हैं। अगर गिरे भी तो पूरा नीचे नहीं गिरते, हवा में रहते हैं। इसमें मैं अभी ऊपर चढ़ रहा हूँ, मेरा फ्रेंड ऑलरेडी ऊपर है, वीडियो ले रहा है मेरी। तो इससे ऊपर पिच क्लाइंबिंग कर रहे हैं हम वहाँ। ये सोनमर्ग में है ये वाटरफॉल, वहाँ 2 वाटरफॉल है, 2 से ज़्यादा ही है। तो वहीं पे हम क्लाइंब कर रहे हैं। ये हमारा पिच है, एंकर लगाया हमने। तो ये हम रोप के ज़रिए मुझे ऊपर चढ़ा रहा है, बिले के ज़रिए दे रहा है, मुझे बिले दे रहा है। बिले एक टेक्निक होती है जिसमें हम दूसरे क्लाइंबर को ऊपर चढ़ाते हैं। ये यहाँ मेरा फ्रेंड वी थ्रेड बना रहा है, जिसके ज़रिए हम 2 होल्स बनाते हैं इसमें आइस में, फिर उसमें रोप डालते हैं। तो उससे हम रैपलिंग करके नीचे आ जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब आदमी नीचे देखता है ऊपर चढ़ के, डर लगता है? नहीं लगता डर, जब आदत हो जाती है इस फील्ड में फिर डर नहीं लगता। पहले पहले जो आएगा उसमें तो स्टार्ट में डर थोड़ा होता है, स्टार्ट बाद में नहीं होता है। बाद में फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर सब ठीक हो अच्छा, जाता ये जो त्रामकंजन में जो आइस फॉर्मेशन बनती है, पहलगाम में वाटरफॉल है 50 मीटर की, आप 25 मीटर तक पहुंचे हैं। ये आपको इंशाल्लाह कब तक उम्मीद है कि आप पूरे 50 मीटर तक पहुंचेंगे? जितना मैं इसमें एक्सपर्ट होगा उतना मैं आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो हो जाएगा इंशाल्लाह इस साल या नेक्स्ट ईयर, देखते हैं। ठीक। जो लर्नर्स हैं, हमारे बच्चे ये प्रोग्राम देखेंगे, यूट्यूब पे भी देखते हैं, रिपीट प्रोग्राम में भी देखते हैं, बिल्कुल सर। अगर वो चाहेंगे तो किसको कांटेक्ट करेंगे, कैसे सीखेंगे? क्योंकि लद्दाख में मैंने सुना कि वहाँ पर आर्टिफिशियल आइस वॉल बनती है और वहाँ पर इसके लेसन शुरुआत करते हैं आइस क्लाइंबिंग के, आर्टिफिशियल वॉल पर। क्या कश्मीर में बनती है आर्टिफिशियल वॉल, या वहाँ पर कोई कोचिंग कुछ होती है इसकी? देखिए, आपको पता है इंडिया में सिर्फ 5 इंस्टीट्यूट है जो माउंटेनियरिंग के रिलेटेड सिखाती है इंस्टीट्यूट से। जी जी कश्मीर में भी एक है, जी, जवाहर इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट पहलगाम। ऑफ माउंटेनियरिंग, जी वो भी सिखाते हैं। तो उसके ज़रिए आप बेसिक कॉन्सेप्ट, वो आपको प्रॉपर आइस क्लाइंबिंग नहीं सिखाएगी, वो आप अलबत्ता आपको माउंटेनियरिंग के बेसिक्स के रिलेटेड बारे में बता बेसिक्स, सकते हैं। जैसे रोप क्या होती है, इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, उसके वो आपको बताएंगे उसमें क्या क्या यूज़फुल होती है। मतलब आइडिया मिलता है उससे अच्छा खासा। उसमें बेसिक कोर्स भी आता है, एडवांस कोर्स भी आता है, फिर MOI भी आता है, आगे ऐसे ही वो आगे आगे चलता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए आप मुज़क्किर, वो ये है कि शुरुआत जब इंसान करता है, ये सामान किसी और से मिलेगा, ये पहले ही खरीदना है? आपने पहले ही ये खरीदा था? क्योंकि इसमें इक्विपमेंट बड़ा लाजमी है, जितनी कोचिंग जरूरी है उतना इक्विपमेंट लाजमी है। इक्विपमेंट तो ज़रूरी है जी। तो इसमें सामान
ये आहिस्ता आहिस्ता कलेक्ट होता है, अच्छा, मतलब एक साथ सारा नहीं एक साथ होगा। सारे हमने पता नहीं कितने सालों में ये कलेक्ट किया पूरा इतना कॉम्बिनेशन बनाया है पूरा इसका। कम, क्योंकि इसमें खाली आइस क्लाइंबिंग नहीं है, क्योंकि हमें बाकी एडवेंचर भी करने जी, होते जी, हैं, जी। रॉक क्लाइंबिंग भी जी, जी, करनी जी। होती है, क्योंकि समर्स में तो आइस होती नहीं जी, है, जी, जी। ये तो सीजनल आइस है, वाटरफॉल जब जम जाते हैं तो उसी में चढ़ते हैं हम। मीनस चलाई कलान का ही पीरियड मौजू है आइस हाँ हाँ क्लाइंबिंग हाँ के हाँ लिए। हाँ हाँ, वही बेस्ट पीरियड होता है। अच्छा अच्छा। बिल्कुल अब हम थोड़ा रॉक क्लाइंबिंग इसके नजदीक है, चूंकि आप उसी पत्थर पर चढ़ते हैं, बिल्कुल। जिस पत्थर पर बर्फ बनी है, कहीं और पत्थर है वहां। क्या एक अच्छा रॉक क्लाइंबर अच्छा आइस क्लाइंबर बनेगा, या डायरेक्टली कोई आइस क्लाइंबर भी बन सकता है? क्या कॉम्बिनेशन है, आपस में कोई लिंक है इन दो एडवेंचर स्पोर्ट्स में? हाँ बिल्कुल लिंक है। आप रॉक क्लाइंबर भी हैं, रॉक तो क्लाइंबिंग भी कितना करता हेल्प हूँ। होता है रॉक क्लाइंबिंग का रॉक इसमें? क्लाइंबिंग जो मैंने आपको यहाँ इक्विपमेंट्स दिखाए, रॉक क्लाइंबिंग में रोप भी इस्तेमाल होती है, जी, हार्नेस भी इस्तेमाल होता है। हार्नेस तो ज़रूरी, ये जो आप क्विक ड्राइव देखते शूज हो, डिफरेंट होते हैं उसमें? शूज़ भी डिफरेंट होते शूज हैं, भी शूज़ डिफरेंट वो होते लाइट वेट होते हैं, लाइट वो वेट शूज उसमें होंगे वो उसमें। क्रैम्प ऑन नहीं लगते, अच्छा, क्रैम्प तो जरूरत नहीं है उसमें। स्पाइक्स जो होते हैं जी। उसमें नहीं लगते, अच्छा, तो उसमें अलग शूज़ होता है। मगर कुछ चीजें सेम है। कुछ चीज़ें सेम है जो ज़रूरी है, जैसे जो गांठ वाट देते हैं जी। वो सारा सेम और है। ऊपर चढ़ के एक ऊपर चढ़ के एक्सपीरियंस करना, एंकर डर बिल्ड भगाना। करना वो सेम है। इसमें आइस स्क्रू होते हैं, उसमें आइस पिटॉन्स होते हैं, ओके। हाँ वो कील जैसे होते हैं, तो वो यूज़ करते हैं। तो आप देखने वाले जो स्पोर्ट्स लवर्स होंगे, बच्चे होंगे जो माउंटेनियरिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, आ सकते हैं इस तरफ, क्योंकि वो इस एरिया में गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल नेचर के नज़दीक जाते हैं, पहाड़ की तरफ जाते हैं, ऊंचाई की तरफ जाते हैं। क्या वो पहले रॉक क्लाइंबिंग सीखें फिर आए आइस क्लाइंबिंग में? क्या ये इजी होगा कि डायरेक्ट आइस क्लाइंबिंग पे जाए? डायरेक्ट आइस क्लाइंबिंग ज़्यादा टेक्निकल है रॉक क्लाइंबिंग से, तो बेहतर है पहले रॉक क्लाइंबिंग को अपनाएं। अपनाए, आहिस्ता आहिस्ता सीखे, फिर खुद ही ये डेवलप होगा, फिर आगे आगे जाएगा तो अच्छा। हो जाएगा फिर। कॉम्पिटिशन्स पर थोड़ा सा वक्त बचा है, एक दो इंपॉर्टेंट बातें करनी है। कॉम्पिटिशन्स कितने होते हैं इसके? बाहर तो होते रहते हैं, बाहर तो होते उत्तराखंड में, लद्दाख में होते रहते हैं। यहाँ कितने कॉम्पिटिशन्स आपकी नज़रों में हुए इन 2 साल में? यहाँ एक ही डिपार्टमेंट है जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट, जी। और है जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, वो कभी कभी करवाते करते हैं, हैं। वो ऑलमोस्ट दिसंबर में एवरी ईयर करते हैं जी, जी, यही competition। विंडो है ना 2 महीने हाँ का, जी सर, इसी में करना वो है। कंपटीशन करते हैं इसका आइस क्लाइंबिंग का, जी। तो उसमें कुछ फीस होती है, वो भरनी होती है, फिर बाहर से भी क्लाइंबर्स आते होंगे, हाँ, क्योंकि हाँ, पूरे हाँ। इंडिया से लोग हैं जो जी आइस जी क्लाइंबिंग बिल्कुल, करते वो हैं, आइस क्लाइंबिंग का नॉर्थ ईस्ट से, उत्तराखंड से, बाकी जगह से, जी हिमाचल बिल्कुल प्रदेश बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया में जो वर्ल्ड बॉडी है वो करती है इसकी यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप या आइस क्लाइंबिंग वर्ल्ड कप वगैरह, तो क्या लगता है भारत कितनी देर लगेगी कि उन जैसे कॉम्पिटिशन्स में जो दुनिया में होते हैं? कहाँ है भारतीय क्लाइंबर्स? इंडिया में भी बहुत सारे क्लाइंबर्स हैं जो करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं। बहुत एक्सपोजर है, कश्मीर में भी ऐसे ऐसे जो Climbers क्लाइंबिंग हैं। करते हैं मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस, अच्छा, बहुत मतलब इससे भी ज़्यादा मोटिवेट भी होते हैं छोटे छोटे बच्चे। मैं इनको बहुत को जानता हूँ जो 20 साल की उम्र में आइस क्लाइंबिंग करते हैं, मतलब अच्छी एज में। मैं अभी अच्छा। 27-28 का हूँ, चलिए तो चलिए मुज़क्किर, चूंकि इशारा हो रहा है, वक्त कम है, इंशाल्लाह आगे आपको जब सीजन आएगा रॉक क्लाइंबिंग का, माउंटेनियरिंग का, तब हम इस एडवेंचर स्पोर्ट के इन इक्विपमेंट से जो स्पोर्ट किया जाता है और बात करेंगे, चूंकि इसमें स्कोप है अभी भी और बात बिल्कुल, करने की। आप यहाँ आए, आपने इस थैंक यू, एडवेंचर थैंक स्पोर्ट पे हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया आपका भी। तो नाजरीन, ये थे मुज़क्किर हमीद ख़ान जो आइस क्लाइंबर हैं और साथ साथ मुख्तलिफ एडवेंचर स्पोर्ट्स करते रहते हैं। उम्मीद है आपको ये इंटरेक्शन पसंद आई होगी। प्रोग्राम के इख्तितामी कलिमात के लिए चलते हैं मेरे साथी फ़हीम महराज के पास। शुक्रिया इमरान भाई। तो नाजरीन, ये थे हमारे आज के मेहमान जिन्होंने हमें बताया, सिखाया और इवन दिखाया भी कि किस तरीके से ये एडवेंचर स्पोर्ट कितने मज़ेदार है, कितना रिस्की और कितना कॉस्टली है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में अगले मेहमान के साथ फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।